ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا مفتاح احمد صاحب بہت شکریہ جو آپ یہاں کر رہے ہیں, آواز اٹھا رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, خواتین کا بہت شکریہ, جتنے لوگ یہاں پہ نوجوان موجود ہیں. پہلے تو عمران صاحب اور رومان صاحب کا جو انسیڈنٹ ہوا یہاں پہ رات گئے چند دن پہلے, اس پہ میں افسوس کا اظہار کروں گا آپ سب سے. انتہائی افسوسناک واقعہ. 2 انسانوں کی جان گئی ہے, ایک آئی سی یو میں ابھی موجود ہے. یہ بدقسمتی ہے. اور جس طرح کا اس کے بعد پولیس کا رویہ تھا, یعنی جو کام کرنے والا ہے وہاں پہ ان کا رویہ کسی اور طرح کا ہے, اور جس جگہ پہ کچھ نہیں کرنا وہاں پہ یہ سینکڑوں کی تعداد میں بھی پہنچ جاتے ہیں. ایک عجیب رویہ ہے ریاست کا اور ریاستی اداروں کا اپنے شہریوں کو لے کر. نارملی ہوتا یہ ہے کہ جو ریاست کے شہری ہوتے ہیں نا, وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ریاست کا موڈ کیا ہوگا. یا الٹا کام ہو رہا ہے, شہری اس طرف چل رہے ہیں, ریاست اس طرف چل رہی ہے, اور یہ لگاتار ہو رہا ہے. ہم اس کو پہلی دفعہ نہیں دیکھ رہے, بڑے لمبے عرصے سے دیکھ رہے ہیں, لیکن اب یہ چیزیں اپنے ایکسٹریم پہ چلی گئی ہیں. غزہ کے حوالے سے, فلسطین کے حوالے سے, فلسطینیوں کی زندگیوں کے حوالے سے, ان کے بنیادی حقوق کے حوالے سے, ان کے بچوں کے جینے کے حق کے حوالے سے. میں چھوٹا سا تھا جب سے میں آواز سن رہا ہوں, لگ بھگ 40 سال ہو گئے سنتے ہوئے, اور ہمیشہ پاکستان کی ریاست نے سپورٹ کیا تھا. سرکاری سطح کے اوپر احتجاج ہوتا تھا, مجھے یاد ہے اچھی طرح, سرکاری سطح پہ, چاہے عامر ہو چاہے کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ ہو, ہمیشہ احتجاج ہوتا تھا. پاکستانی مل کر احتجاج کرتے تھے, مساجد میں دعائیں کرتے تھے, سڑکوں کے اوپر فیملیز مل کر فلسطین کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی. اور یاد رکھیے گا, بہت سارے اسلامی ملک ہیں اس دنیا میں, لیکن جو پاکستان کی اہمیت ہے وہ سب کی نہیں ہے. آپ ایٹامک کنٹری ہیں. آپ کے یہاں سے جو آواز جاتی ہے یا آپ کے یہاں سے جو بات پہنچتی ہے اس میں طاقت زیادہ ہے. باقی مسلمان ملک پیسے میں بہت زیادہ ہوں گے, امیر ملک ہوں گے, کہیں آبادی بھی زیادہ ہے, لیکن جو طاقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے, جو اہمیت آپ کی ہے, وہ سب کی نہیں ہے. ہماری اپنی ایک الگ اہمیت ہے. اس لیے ہمارا احتجاج, ہمارا بولنا ہمیشہ سے معنی رکھتا ہے, ہمیشہ سے. اس لیے جب بھی ہم بولتے ہیں اس کا اثر پڑتا ہے, اور ہم نے ماضی میں دیکھا بھی. آج اکتوبر سے لے کر اب تک وہ مار رہا ہے. کیا بے بسی, ہم روک نہیں پائے. لوگوں کی تعداد ہے ہماری, وہ چند لاکھ لوگوں کو ہم روک نہیں پا رہے. ہم تو تھوڑے سے ہوتے تھے یار, تھوڑے سے ہوتے تھے, اور سب کو آگے لگایا ہوا ہوتا تھا. تاریخ گواہ ہے, ساری تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ مسلمان تھوڑا بھی ہوتا تھا نا تو بہت ساروں کا مقابلہ کر دیتا تھا. ریاستیں کانپتی تھی, لوگ ڈرتے تھے. فرق تھا غیرت کا, غیرت کا فرق تھا. ایک بچہ مارا جاتا تھا نا, ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی, سارے مسلمان اٹھتے تھے. انہیں پتا تھا واپس آئیں گے, بدلہ لیں گے, نہیں چھوڑیں گے. یہ پوچھیں گے, حساب مانگیں گے, جواب مانگیں گے, یہ ہمارے گھر تک پہنچیں گے, یہ اس کیس کو لڑیں گے, یہ پیچھے آئیں گے. غیرت ہوتی تھی. عجیب رجیم آ گیا ہے. میں آج پاکستان ٹیلی ویژن کا ڈیٹا چیک کروا رہا تھا. آپ کی خبر نہیں چلتی صاحب. آپ کو یقین آ رہا ہے, اپنی زندگی میں آپ نے یہ دن دیکھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن آپ کی خبر نہیں چلا رہا, آپ فلسطین کے حق میں نکلے ہوئے. نہیں چل رہا صاحب. ٹی وی چینلز کو منع کرتا ہے. یہ رجیم آ گیا ہے. اس ملک میں اس وقت ایک ایسا عجیب رجیم ہے جس کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا. ہم نے نہیں سوچا تھا کہ کبھی یہ حکومت ایسی آئے گی جو منع کرے گی کہ فلسطینیوں کے حق کے لیے نہ نکلو, اسرائیل کے خلاف آواز نہ اٹھاؤ. کیا یہ ریاست تسلیم کر چکی ہے اور بتا نہیں رہی؟ کیا ہم نے اسرائیل کی بالادستی تسلیم کر لی ہے؟
या हमने ये मान लिया कि फलस्तीनी बस अब खत्म हो जाएंगे, उनको जीने का हक अब नहीं है? लेकिन कम से कम आवाज तो उठाने दो ना, और कुछ नहीं तो दुनिया को तो बताने दो कि हम क्या चाहते हैं, इस मुल्क के लोग क्या चाहते हैं, उनकी आवाज को। खबर चलती जरूर है, मैंने ये चेक किया, खबर चलती है, लेकिन फलस्तीन में क्या हुआ ये बताया जाता है, जी आज इतने शहीद हो गए, बस ये खबर चलती है। खबर ये नहीं चलती कि पाकिस्तानी इसके ऊपर क्या कह रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है प्रोमोज बनते थे, मुझे अच्छी तरह याद है स्पेशल सेगमेंट्स होते थे, मुझे अच्छी तरह याद है स्पेशल बुलेटिन्स होते थे, ट्रांसमिशन होती थी कश्मीर के मामले के ऊपर। साहब हो रही है, आपको बुला रहा है कोई? नहीं हो रहा, कोई आवाज उठाने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी जब ये कल मैं खबर पढ़ रहा था ना, दिल को अच्छा लग रहा था कि नॉर्वे ने, स्पेन ने, आयरलैंड ने फलस्तीन को तस्लीम किया, लेकिन साथ ही मेरे ख्वाब टूट गए जब मैंने मुशाहिद हुसैन सैयद को सुना कि पाकिस्तान की मिलिट्री हाई कमांड वो क्या कर रही थी कि हम इसराइल को तस्लीम कर देंगे। मैं नहीं कह रहा, मुशाहिद हुसैन सैयद कह रहे हैं। पावर कॉरिडोर में उनके बड़े ताल्लुकात हैं, एक्सेप्टेबिलिटी बहुत है, वो कह रहे हैं। अलामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा है, उन्होंने कहा जनरल बाजवा ने हमें कहा एनडीयू में इसराइल के सफारतखाने के हवाले से, एक तरफ हम ये खबर पढ़ रहे हैं कि वो गोरे गैर मुस्लिम वो फलस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं, साथ ही दूसरी खबर हम ये पढ़ रहे हैं कि यहां पाकिस्तान के अंदर जो करता धरता और ताकतवर लोग हैं वो इसराइल को तस्लीम करने की बात कर रहे हैं। दिल ही टूट गया, तकलीफ हुई है। 70 साल हमें ये बताया गया कि फलस्तीन को और कश्मीर को आजादी लेकर देनी है। हमने जब नई बंदूक खरीदी, ये सोचकर खरीदी, मैं अपने बाप दादा से आपको बता रहा हूं, जब नई बंदूक खरीदी ये सोचकर खरीदी कि कभी वक्त आया ना तो कश्मीर और फलस्तीन इसके हक के लिए ये इस्तेमाल हो जाए तो अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। हमेशा ये सोचा। लेकिन आज रियासत की क्या पॉलिसी है किसी को समझ आ रही है? मुंह से कहते हैं हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, और जो फलस्तीन के साथ खड़ा है उसको गाड़ी के नीचे भी देते हैं, डंडे से भी मारते हैं, उसको गिरफ्तार भी करते हैं, उसका स्पीकर भी उठाकर ले जाते हैं, ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें तारीख में लिखी जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि इनसे जान छूट जाएगी, ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है कि कौन आया, किसने क्या कहा और उसके दौर में क्या हुआ। कल हम किसी को मंजन नहीं बेचने देंगे, साहब गवाह रहिएगा। कल आकर कोई अगर मंजन बेचेगा और वो कहेगा कि मैंने ये किया था और वो किया था, तो उसकी बात नहीं मानेंगे आप। इसको रिकॉर्ड पे रखें। आज इस रिजीम ने फलस्तीन के कॉज को पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम डैमेज कर दिया है, मैक्सिमम। इतना पहले कभी नहीं हुआ था। और अगर आज ये कॉज कहीं पे नजर आ रहा है ना, तो ये सिर्फ आपके साथ मुश्ताक अहमद साहब खड़े। मुझे यहां से ठंडी हवा आ रही है सिर्फ डी चौक से, या कहीं पे जुम्मे वाले दिन दुआ हो जाती है, या कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कोई बात कर लेता है इसके ऊपर। अदरवाइज मुझे जो मैं गेस कर रहा हूं, जो मैं स्मेल कर रहा हूं, या जो चीजें समझ आ रही हैं वो ये आ रही है कि शायद हमारी रियासत मसला फलस्तीन के ऊपर कुछ डिसाइड कर चुकी है जो अभी हमें नहीं पता, ऐसा लगता है। और वो लोग जो पावर कॉरिडोर्स में उठते बैठते हैं वो अब वक्तन फवक्तन इस किस्म के स्टेटमेंट्स देना शुरू हो गए हैं। क्या पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इसको तस्लीम करेंगे? बॉल तो फिर पब्लिक के कोर्ट में आ गया ना। डिसाइड तो पाकिस्तान के लोगों ने करना है। बंद कमरों का फैसला जो है वो मुसल्लत तो हो सकता है, लेकिन उसकी कबूलियत और मकबूलियत होगी या नहीं होगी वो हमने 8 फरवरी को भी देख लिया था। डिसीजन तो पब्लिक का होगा फाइनली। तो रियासत को होश के नाखून लेने चाहिए। एक चीज में नहीं, 1 दर्जन चीजें हैं, लेकिन यहां मैं सिर्फ फलस्तीन की बात करूंगा। 1 दर्जन चीजें हैं जिन पर रियासत को होश के नाखून लेने चाहिए। और फलस्तीन पर खसूसी तौर पर ये पाकिस्तान के अवाम की घुट्टी में है ये मसला। मैं छोटा सा बेटा 4 साल का, वो रास्ते में कह रहा था देखो ये वो वाली बोतल पी रहा है, ये तो वो उधर से आती है, बाबा इसको मना करें।
घुट्टी में है, छोटे छोटे बच्चों को पता है, स्कूल के बच्चे जानते हैं। वो 2 फुटबॉलर ने उनका नाम लेकर बच्चे बहस कर रहे थे, मैं सुन रहा था बात उनकी और मैं हैरान हो रहा था कि ये किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि घुट्टी में है। वो कह रहा था वो फुटबॉलर अच्छा है, वो फलस्तीन को सपोर्ट करता है, ये इसराइल को सपोर्ट करता है, मुझे पसंद नहीं है। घुट्टी में है इस कौम की, इससे आप नहीं निकल सकेंगे साहब, बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। चीजों को रिव्यू करें और नेचुरल अंदाज में वैसे चलने दें जैसे पाकिस्तानियों की मंशा है। और मैं मुतालबा करता हूं इस प्लेटफॉर्म से और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जहां जहां मुझे मौका मिलेगा कि ये जो 2 कत्ल हुए हैं ये रायगां तो नहीं जाएंगे, ये अल्लाह के यहां कबूल है और शहीद हैं 2, लेकिन रियासत की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई जिम्मेदारी होती है। उनका काम सिर्फ सियासी पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तरों पे या सियासतदानों पे छापे मारना नहीं रह गया। उनका काम सिर्फ नाकों पे खड़े होकर शहरियों को परेशान करना नहीं रह गया। उनकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और भी जिम्मेदारियां हैं। इन्हें इंसाफ दीजिए, इन्हें इंसाफ दीजिए, इस कत्ल को इंसाफ दीजिए, कातिल को सजा दीजिए ताकि आइंदा इस तरह के इक़दामात ना हो। लोग आपके ऊपर एतमाद खो रहे हैं। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि मामला शुरू होता है और लोग अपना एतमाद खोते खोते रियासत से दूर होते चले जाते हैं। हमारे सामने बेशुमार मिसालें हैं। रियासत और शहरियों के बीच में जब फासले बढ़ते हैं तो उसका नुकसान मुमलिकत को होता है। उस नुकसान से बचना है तो होश के नाखून लीजिए। मैंने आप सबका बहुत वक्त ले लिया, आप सबका सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद। बहुत शुक्रिया आपका। अब ह्यूमन राइट्स कौन